Hello everyone. Welcome to SPMIS Academy. Please note that Satyajit sir is not well and that is why he will not be able to do the newspaper analysis today. He will be back as soon as he gets well. In today's video, we will analyze the newspaper of 4th May 2021. Please note that you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can join our APSC or UPSC foundation batches. You can attend the free demo classes and these classes are available in both offline and online mode. You can join our WhatsApp group through the link in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we are going to cover today. The first topic has been taken from the editorial section and it is about royalty issue of Covaxin. This is important for our syllabus paper 3 governance health and prelims point of view. So you see, all of you know that the vaccination process has started in India और इस process में हम लोग basically दो वैक्सीन का यूज़ कर रहे हैं एक है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन. ये जो कोविशील्ड है this vaccine has been developed by Oxford University and Serum Institute in India and this was the first vaccine to get approval. इसके अलावा जो दूसरा वैक्सीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं that is Covaxin and this Covaxin is jointly developed by Bharat Biotech and ICMR. तो Covaxin जो है it has been development in public private partnership mode. तो public private partnership mode मतलब it is jointly developed by a public enterprise and a private company, right? So Covaxin is jointly developed by Bharat Biotech which is a private pharmaceutical company and National Institute of Virology. ये जो National Institute of Virology है it is an institute functions under the Indian Council for Medical Research और ICMR. तो इसका जो पेटेंट है कोवैक्सीन का जो पेटेंट है इट हैज़ बीन शेयर्ड बिटवीन भारत बायोटेक एंड इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च. सो करंट न्यूज़ ये है कि ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन या कोविशील्ड इसके प्राइस को लेके कुछ डिबेट चल रहा था. यू सी इनिशियली ये जो कोविशील्ड है इट वाज फर्स्ट ऑफर टू द स्टेट्स एट ₹400 अ डोज एंड ₹600 टू प्राइवेट हॉस्पिटल. जो स्टेट है उसको 400 में दिया जा रहा था और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको ₹600 में दिया जा रहा था पर डोज. और जो कोवैक्सीन है इट वाज ऑफर्ड at ₹600 for state governments and ₹1,200 for private hospitals. Now, when these prices are released, then there is a much debate in the public forum regarding the high price of these vaccines. बोला जा रहा था, पूछा जा रहा था, questions are being raised कि इतना ज़्यादा प्राइस क्यों लगाया जा रहा है ये वैक्सीन्स के ऊपर. जब ये डिस्कशन हुआ पब्लिक फोरम में लेटर दिस कोविशील्ड प्राइस वाज रिड्यूस्ड टू ₹300 अ डोज फॉर स्टेट्स एंड कोवैक्सीन का जो प्राइस है वो कम करके ₹400 कर दिया गया. लेकिन अभी भी क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड ओवर द प्राइस ऑफ कोवैक्सीन. लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोवैक्सीन जो है इट इज़ ऑलमोस्ट एंटायरली indigenously developed, then why it is priced higher than Covishield, right? So Covaxin जो है as you can see ICMR और भारत बायोटेक ये दोनों मिलके इसको डेवलप किया है तो इट इज़ ऑलमोस्ट एंटायरली इंडिजिनस, राइट? तो इसका प्राइस क्यों हाई है? तो यू सी बेसिकली जो इसका प्राइस हाई होने का कारण है वो ये है कि ये पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, राइट? यहाँ पे ICMR और भारत बायोटेक दोनों मिलके इसको डेवलप किया है और इसका जो प्राइस है वो आपका जो प्राइवेट कंपनी है भारत बायोटेक, ये भारत बायोटेक इसका प्राइस डिटरमिन कर रहा है, राइट? तो इसका प्राइस जो है वो गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर रहा है. यहाँ का इसका जो प्राइस है वो एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी ही इसका प्राइस डिटरमिन कर रहा है. तो बेसिकली जो एग्रीमेंट है वो किस तरीके का है वो हम लोग देखते हैं. देखिए ये जो वैक्सीन है इट हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक एंड ICMR. हियर ICMR विल गेट रॉयल्टी ऑन नेट सेल्स ऑफ कोवैक्सीन. तो बेसिकली क्या है कि ये जो प्रोडक्ट डेवलप किया ये डेवलप दोनों ने मिलकर किया ICMR और भारत बायोटेक. लेकिन भारत बायोटेक ने ICMR से लाइसेंस एक ले लिया कि इस प्रोडक्ट को भी भारत बायोटेक सेल करेगा. सो भारत बायोटेक हैज़ टेकन द लाइसेंस फ्रॉम ICMR टू सेल दिस प्रोडक्ट एंड इन रिटर्न ICMR को भारत बायोटेक एक रॉयल्टी पे करेगा. Right. Now, what is this royalty? Royalty is a legally binding money paid to individuals or companies for the ongoing use of their assets protected under intellectual property rights. Right. So, since this vaccine is jointly developed by ICMR and Bharat Biotech, so it is an asset of both these companies. Right. So, ICMR का भी ये asset है और ये Covaxin का भी asset है. लेकिन इसको सेल करेगा भारत बायोटेक. Right. So, भारत बायोटेक इसको सेल करेगा लेकिन ये जो एसेट है ये ICMR का भी एसेट है. तो भारत बायोटेक इसको सेल करेगा और सेल करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका एक शेयर एज अ रॉयल्टी वो ICMR को देगा, राइट? तो टर्म्स ऑफ रॉयल्टी पेमेंट्स आर मेंशन इन लाइसेंसिंग एग्रीमेंट डन बिफोर. पहले ही एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होता है जैसा मैंने बोला कि भारत बायोटेक विल टेक द लाइसेंस फ्रॉम ICMR टू सेल दिस प्रोडक्ट और इन रिटर्न
जो है वो एक रॉयल्टी पे करेगा। नाउ रॉयल्टी अमाउंट इज टिपिकली अ परसेंटेज ऑफ सेल्स प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिविटी और राइट्स, टेक्नोलॉजी एंड अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। The next topic is G7 countries. It has been taken from international segment and it is important for our paper 3 international relations and prelims. So ये जो G7 stands for group of 7. ये जो G7 है, it is a forum of the world's 7 largest developed economies whose government leaders meet annually to discuss international economic and monetary issues. ये जो G7 के member countries है वो है फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड जापान। तो बेसिकली ये जो G7 मीटिंग होता है, जो एनुअली एक मीटिंग होता है, इसका मेन जो पर्पज़ है इट इज़ टू डिस्कस एंड डेलिबरेट ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज़, राइट। जो अभी जो इंटरनेशनल इकोनॉमी जो इश्यूज फेस कर रहे हैं उसको डिस्कस करना ही मेन पर्पस होता है ये G7 मीटिंग्स का। ये जो G7 ग्रुप था इनिशियली इट वाज नोन एज G8 क्योंकि इसमें 8 कंट्रीज हुआ करता था, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस कंट्रीज दैट आई हैव मेंशन जस्ट नाउ, इसके साथ रशिया वाज अनदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप और इसीलिए पहले इसको G8 नाम से जाना जाता था। बट इन 2014 आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया रशिया हैज़ बीन ड्रॉप फ्रॉम दिस ग्रुप। रशिया को इस ग्रुप से ड्रॉप कर दिया, तो अभी यहाँ पे बस 7 कंट्रीज है एंड दैट इज़ वाई नाउ दिस ग्रुप इज़ नोन एज G7। लेकिन जब रशिया इसका मेंबर था तब इसको G8 के नाम से जाना जाता था। तो करंट न्यूज़ ये है कि G7 मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड फ्रॉम 3rd to 6th May 2021। नाउ इंडिया, ऑल्दो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस G7 ग्रुप, बट इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द मीटिंग एज अ गेस्ट कंट्री। हम लोग का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, ही इज़ ऑन अ 4-day विजिट टू लंदन टू पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ G7 कंट्रीज। इस टॉपिक के ऊपर बेस करके एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next topic is World Press Freedom Day. It has been taken from international segment and it is important for our syllabus paper 3 international relations and it is also important from prelims point of view. So 3rd May is celebrated as World Press Freedom Day and this article mainly says that many places in Assam World Press Freedom Day is being observed. Now वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में कुछ चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन May 3 एवरी ईयर और इस साल का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है उसका थीम है इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। अगर ये 3rd में इस पर्टिकुलर डेट का हम लोग सिग्निफिकेंस देखें तो ऑन दिस डे इन 1993 डिक्लेरेशन ऑफ विंडहॉक वाज एज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड और ये जो विंडहॉक डिक्लेरेशन है इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्री, इंडिपेंडेंट एंड प्लूरलिस्टिक प्रेस। विंडहॉक इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नामीबिया। तो 1993 से UN प्रोक्लेम दिस डे एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनेस्को। Now this is the practice question based on this topic. You can attempt these questions and give your answer in the comment section. The next topic is fossil of Dickinsonia at Bhimbetka. It has been taken from national segment and it is important from our paper 2 history point of view and it is also important for prelims. So न्यूज़ ये है कि रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड 3 फॉसिल्स ऑफ द अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल डिकिंसोनिया ऑन द रूफ ऑफ द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स नियर भोपाल। तो भीमबेटका में जो रॉक शेल्टर्स है वहाँ पे डिकिंसोनिया जो माना जाता है कि अर्लीस्ट लिविंग एनिमल है उसका फॉसिल पाया गया है। नाउ इस न्यूज़ का सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो फॉसिल्स हमको मिला है, ये रिसर्चर्स को जो ये फॉसिल्स मिला है, दे वर द ओनली सच फॉसिल्स अवेलेबल इन द कंट्री एंड वर सिमिलर टू दोज सीन इन साउथ ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो फॉसिल्स हमको मिला था उससे मिलता जुलता फॉसिल्स हमको अभी इंडिया के भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में मिल गए हैं। दिस इज फर्दर प्रूफ ऑफ द सिमिलर पेलियो एनवायरनमेंट्स एंड कंफर्म्स असेंबली ऑफ गोंडवाना लैंड बाय द 550 मिलियन ईयर्स एगो। गोंडवाना लैंड सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट लैंड मासेस अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो। तो बेसिकली आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि हम लोग का जो पूरा लैंड मास था ये एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक पेंजिया जिसको हम लोग बोलते थे, और पेंजिया जो बाद में इट गॉट ब्रोकन, ये टूट गया और टूट के 2 अलग अलग लैंड मास फॉर्म हुए थे, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया, राइट। सो ये गोंडवाना लैंड में इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अमेरिका था, अफ्रीका था। तो इस तरीके से तो अभी ये जो फॉसिल्स मिला है जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में मिला है, सेम फॉसिल्स अभी इंडिया में मिलना अभी टू सम एक्सटेंट इसको प्रूव करते हैं कि ये जो गोंडवाना लैंड का थ्योरी है कि इनिशियली ये सब एक ही लैंड मास का पार्ट था, ये अलग अलग जो सबकॉन्टिनेंट है ये सब एक ही लैंड मास का पार्ट था, टू सम एक्सटेंट ये फॉसिल्स उसको प्रूव करते हैं।
राइट। सो ये जो डिकिंसोनिया है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डिकिंसोनिया इट इज़ एन एक्सटिंक्ट जेनस ऑफ बेसल एनिमल स्पॉन्जेस corals एंड जेलीफिश एंड दैट लिव ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलिया रशिया एंड यूक्रेन अबाउट 550 मिलियन ईयर्स एगो। राइट, तो ये डिकिंसोनिया का जो फॉसिल हमको मिलता है उससे ये गोंडवाना लैंड वाला थ्योरी भी प्रूव होता है, और ये भी प्रूव होता है कि यहाँ पे जो अर्लीस्ट लिविंग एनिमल बोला जाता है डिकिंसोनिया, वो यहाँ पे पाया जाता था। सो दिस वॉज वट आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट गोंडवाना लैंड, जो अल्टीमेटली ये टूट के अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए थे। इनिशियली इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ सेम लैंड मास। सो इसमें जब ये डिकिंसोनिया विम्बेटका रॉक शेल्टर्स में पाया गया है, तो विम्बेटका के बारे में भी कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो विम्बेटका रॉक शेल्टर्स दिस आर लोकेटेड इन राइजन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट कंसिस्ट ऑफ 7 hills. At least some of the shelters were inhabited more than 1 lakh years ago. Some of the Vimbetka rock shelters feature prehistoric cave paintings and the earliest are about 10,000 years old. Right, तो बेसिकली विम्बेटका रॉक्स में हमको बहुत सारे केव पेंटिंग्स मिले हैं, और ये केव पेंटिंग्स ये प्रूव करता है कि राइट फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज दिस एरिया वाज इनहैबिटेड बाय ह्यूमन बींग्स। राइट, सो these rock shelters were discovered by archaeologist V.S. Wakankar in 1957-58. These cave paintings show themes such as animals, early evidence of dance and hunting, and ये जो Vimbetka hills है these are close to Narmada river. सो इस टॉपिक के ऊपर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ दीज आर द आंसर्स ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ यस्टरडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आंसर है ए। सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आंसर इज ऑप्शन बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। एंड द थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो था उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। दैट इज ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।